Hi, Hi, Bhushan. how are you? I guess you're on mute. Just a second, huh? Just a second. Let me check. It's fine now. It's fine. I can hear you now. You can hear me? Okay, great. Yeah. कैसे हैं? क्या हाल चाल है वहाँ पे? Bus, all good, all Good, good. fine. चलो, good. You're in Mumbai, right? हाँ, yeah. Okay. Mumbai is pretty bad. Yeah, Mumbai is bad. We are getting used to it. Yeah, nothing much we can do about it. Absolutely. So just So we'll be starting in a minute. okay. I'll just finish my tea. Just give me a minute. Yeah. Yeah, it's quite hot. I don't think I'll be able to finish. You can have it during the session also, as I have it every day. So ये क्या है? इसमें the kind of people will be there. Attendance जो है. Yeah. So what I mean, we Are we started on the live now? Yeah, we are live now. We started this on 27th, and this is the third day of Startup Pathshala. And Okay. Today's topic, as I told you earlier, it's about startup idea, finding a good startup idea, and see if you can validate it at the early stage before doing anything significant with that. So we'll be talking about that. So I think I can formally introduce you to the audience and viewers now. So Sure. good evening, everyone. Today we have with us Mr. Bhushan Gajaria. He is the founder of Beehive Capital, and he's a startup mentor, investor, and he has helped a lot of startups in Madhya Pradesh, and one of them was Kabadiwala. He helped them in the investment process, and I think your company, you yourself have invested in that Kabadiwala. Yeah. Yeah. So that's about him. And before, yeah, sorry. Yeah. So we have invested in Kabadi. So I personally invested in Kabadiwala along with my company. Okay. That's nice. So before we start today's session, I would like to start from the yesterday's question. I think after the session, somebody posted a question on our social media platform asking that, कि अभी शायद रिसेशन आने वाला है, शायद जो हम लोगों ने देखा है करंट टाइम का सबसे बड़ा रिसेशन, इट माइट टर्न इनटू डिप्रेशन आल्सो. तो इस समय स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप का क्या कोई वैल्यू है, क्या कोई मतलब है, या फिर हम सिर्फ अपना मे बी इट्स नॉट वर्थ doing all these things and putting our efforts into startup. So I just wanted to answer that, and then like to have your comment also on the solution. So I mean in 2008, because we have seen that recession, we were not there in 90, 29, 30, a great depression time, but the great recession of 2007, 8, 9, we all have seen that. Most of us have experienced that also. So I would just like to mention a couple of startups. Those were very successful, and they started in that recession time. We all have WhatsApp. WhatsApp was started in 2009. We have Uber, we have Dropbox, we have Instagram. So all these startups started at the time of recession, or great recession of 2008, जहाँ बड़ी बड़ी कंपनी लेमन ब्रदर्स जैसे बैंक बंद हो गए. But so this is the opportunity time. So this is as necessity is the mother of invention. Scarcity drives entrepreneurship. So I think जब आवश्यकता है, अपॉर्चुनिटी है, तभी दिस इज द बेस्ट टाइम आई वुड से, जहां पे बड़े बड़े प्लेयर्स स्ट्रगल कर रहे हैं. स्टार्टअप तो वैसे भी मोस्ट ऑफ द टाइम स्ट्रगल ही करते हैं. सो दिस इज द मेक और ब्रेक टाइम. सो आई थिंक वी शुड मेक द मोस्ट ऑफ सच अपॉर्चुनिटी. नाउ भूषण, विद योर ओपनिंग रिमार्क्स, आई थिंक वी कैन टेक इट ऑन फ्रॉम देयर. बट इस पर अगर आप अपना भी कुछ व्यू रखना है इस पॉइंट पे. Sure. So thank you CK for inviting here. And clearly जैसे CK ने बताया कि कोई भी रिसेशन होता है, रिसेशन के साथ वहीं पे अपॉर्चुनिटीज आती है. एंड जो उन्होंने एग्जांपल दिया कि 2007-8 में प्रॉब्ली ऐसी कंपनीज जो चालू हुई थी तो आज ओवर अ पीरियड यूनिकॉर्न बनी.
सी ऐसा जब मोड आता है, ऐसे जब टाइम्स आते हैं, होता क्या है कि आपका वे ऑफ वर्किंग, द वे ऑफ लाइफ, ये सब चेंज होता है। और एज अ स्टार्टअप अगर आप इसको, अगर प्रॉपरली ये ट्रेंड को, अगर आप ट्रेंड को ये समझ सकते हैं, तो पॉसिबल है कि आप नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस अभी मैं जैसे एग्जांपल दूंगा कि वर्क फ्रॉम होम जो है, सो वर्क फ्रॉम होम एकदम नॉर्मल कल्चर होने वाला है। रिमोट वर्किंग विल बी वेरी कॉमन थिंग। देन काफी सारे आपके एंटरप्राइज सॉल्यूशंस है, फील्ड फोर्स सॉल्यूशंस है, आपके ऑनलाइन लर्निंग है, एजुकेशन एडटेक में है, तो इसमें नहीं। सो कुछ ऐसे बिजनेसेस होंगे वो शट डाउन होंगे, जिसमें ट्रेंड विल नॉट बी इन देयर फेवर, और कुछ ऐसी बिजनेसेस होंगे जो ट्रेंड के हिसाब से प्रॉब्ली मोर रेलेवेंट हो जाएंगे। और यही टाइम होता है जब आप नए स्टार्टअप्स को देख सकते हो। सेकेंड चीज ये है, प्रोबेबली एक कोर्स करेक्शन रिक्वायर्ड था इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में भी, एंड ग्लोबली, नॉट जस्ट इंडिया, अक्रॉस द वर्ल्ड, के काफी सारे स्टार्टअप्स प्रमोटर्स जो ये सोच रहे हैं कि बाहर का कैपिटल फ्रीली अवेलेबल है और जब चाहिए तब अपने को अवेलेबल है, और कभी भी अपने खुद के बिजनेस के सस्टेनेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस नहीं कर रहे थे। शायद ये रिसेशन की वजह से, और ये चेंज, और ये तो रिसेशन भी नहीं है, ये तो रीसेट बटन है। तो ऐसे टाइम पे काफी सारे स्टार्टअप्स अभी ये सोचना चालू करेंगे कि हम लोग कैसे रेलेवेंट रहे, हम लोग कैसे सस्टेन करें। अगर बाहर का पैसा नहीं भी मिलता है तो क्या हमारे बिजनेस आइडिया में इतना दम है कि वो खुद अपने पैरों पे खड़ा रह सकता है। क्योंकि काफी टाइम होता है, देखिए अभी 10 रुपए की चीज 8 रुपए में बेच के अगर मैं धंधा कर रहा हूं तो वो कोई सस्टेनेबल नहीं है। वो तो बाहर का पैसा मेरे पास अवेलेबल था इसलिए मैंने कर लिया। तो प्रोबेबली ये जो कोर्स करेक्शन रिक्वायर्ड था इस इंडस्ट्री को, ये रिसेशन ये पूरे सॉल्यूशन के साथ मिलता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, जब मैं एज एन इन्वेस्टर देखता हूँ, सो जैसे मैंने जहां जहां पे इन्वेस्ट किया है उन सब कंपनीज को मैंने बोला है कि मुझे इस मोड पे आप लोग सबसे एक चीज देखें कि आपकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स कैसी है। बिजनेसेस तो सब इंपैक्ट होने वाले हैं, हर एक बिजनेस इंपैक्ट होने वाले हैं, लेकिन आपके पास, आप इतना सोच सकते हो कि ऐसे टाइम पे आप क्या चेंज ओवर कर सकते हो, कैसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हो, और किसमें आप अपना खुद का सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स दिखा सकते हो। जैसे यहीं से जबलपुर इंक्यूबेशन सेंटर में एक कंपनी है जिसके साथ मैं काफी इंटरेक्ट करते रहता हूँ, तो उन्होंने वो मास्क डिटेक्शन और वो सब टेक्नोलॉजी पे काम किया। तो उन्होंने अपनी दे ट्राई टू फाइंड आउट अ वे कि ऐसे सब टाइम पे अभी क्या रेलेवेंट होगा, और उसके हिसाब से अपना बिजनेस मॉडल थोड़ा पिवट कर रहे हैं। उनका बिजनेस मॉडल ये स्पेस में नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को, यूज केस को उसने अपना चेंज किया, टेक्नोलॉजी सेम रखी, प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी। सो अगर ऐसे सोचेंगे स्टार्टअप्स तो देयर इज अ लॉन्ग लाइफ अहेड फॉर स्टार्टअप। नाउ आई विल कम टू जो मेरा टॉपिक है, मोर ऑन द आइडिया जनरेशन एंड आइडियाज, हाउ डू आइडियाज कम। सो देखिए नॉर्मली क्या होता है स्टार्टअप इकोसिस्टम में, मेरा जो एक्सपीरियंस है काफी सारे स्टार्टअप्स के साथ इंडिया में, एंड ये 80% ऑफ द स्टार्टअप्स के साथ है, और 20% ऑफ द स्टार्टअप्स थोड़ा अलग सोचती है। 80% ऑफ द स्टार्टअप प्रमोटर्स है, पर्टिकुलरली जो एक्सपीरियंस्ड है, जो प्रोफेशनल्स काफी इंडस्ट्री से आ चुके हैं, उन लोग का थॉट प्रोसेस डिफरेंट होता है। काफी जो इंक्यूबेटर रूट से आते हैं, यंग है, फ्रेश है, उन लोग का थॉट प्रोसेस डिफरेंट होता है। सो काफी लोग कैसे देखते हैं कि अच्छा यूएस में कौन सी अपॉर्चुनिटी को फंडरेज हो गया है, कौन सी अपॉर्चुनिटी सक्सेसफुल हो रही है, उसको अपने लोग इंडियन कंटेक्स्ट में कैसे उसको अडेप्ट करके बिजनेस आइडिया बनाए, और वैसे बिजनेस आइडियाज बनाते हैं। एंड while that is a successful model in terms of the fundraising or becoming early unicorn, probably that is not necessarily the successful model when it comes to a sustainable business ideas. So business ideas में क्या होता है, आपको सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछना है बिजनेस आइडिया में कि आपके पास जो आइडिया है वो कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है। जब प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है इसका मतलब ये नहीं है कि आपने इनोवेटिव प्रोडक्ट ही लाना है, आप शायद ये भी कर सकते हो प्रॉब्लम सॉल्यूशन को कैसे आप एग्जीक्यूट करते हो। ओके, आप डिफरेंटली एग्जीक्यूट करके भी अगर वो बिजनेस चला सकते हो तो भी आपने एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन लेके आए। सो क्या आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, या फिर आप ऐसी कोई नई कंज्यूमर डिमांड क्रिएट कर रहे हैं जो कंज्यूमर ने आज तक सोची नहीं है। ओके, सो काफी टाइम होता है, जैसे कंज्यूमर कभी भी आपको ये नहीं बोलता है कि मुझे क्या प्रोडक्ट चाहिए, वो कभी भी नए प्रोडक्ट कंज्यूमर नहीं बोलता है। कंज्यूमर सिर्फ ये बोलता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है या मुझे ये नीड है इन टर्म्स ऑफ। सो जैसे इंटरनेट जब चालू हुआ होगा तो आई एम श्योर कोई भी कंज्यूमर ने नहीं बोला होगा कि मुझे इंटरनेट चाहिए, उसको ये भी नहीं पता होगा कि इंटरनेट क्या है, उसने ये नहीं बोला होगा।
लेकिन उसने ये बोला कि अगर मुझे फास्टर कम्युनिकेशन, सीमलेस कम्युनिकेशन अक्रॉस द ग्लोब करना है और कॉस्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना है तो क्या सोल्यूशन हो सकते हैं, और उस नीड के बेसिस पे आपकी कभी भी इनोवेशन होती है, आइडियाज होती है। उसके बाद आता है थर्ड, सेकंड होता है कि आप कंज्यूमर डिमांड को समझ सकते हो, या थर्ड चीज होती है क्या आप जो ट्रेंड चेंज होते हैं उसको आप समझ पा रहे हो कि नहीं, कि कैसे कंज्यूमर बिहेवियर चेंज हो रहा है, द बिजनेस का पैटर्न कैसे चेंज हो रहा है, हाउ बिजनेसेस आर गोइंग टू हाउ बिजनेसेस आर गोइंग टू वर्क गोइंग फॉरवर्ड। अगर ये सब अगर आप सोच रहे हो कि वहां नए ट्रेंड्स क्या आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से अगर आप आइडिया लेके आते हो तो वो सोचना है, या फिर आप नई कंज्यूमर डिमांड क्रिएट करो, या फिर आप चेंजिंग कंज्यूमर नीड को अर्ली आप सोच सको, ये चीज होती है। इसके बाद आता है अगर आप प्रॉब्लम सोल्यूशन भी जब होता है तो इसमें दो चीज होती है, एक होता है कि पूरी दुनिया को पता है ये प्रॉब्लम है और फिर भी इस चीज में किसी ने बिजनेस नहीं किया है, तो हो सकता है कि शायद इसमें एग्जीक्यूशन चैलेंजेस बहुत हो सके इसलिए नहीं किया होगा, या इसका कोई सोल्यूशन नहीं हो सके। लेकिन बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज ऐसे होती है जहां पे कंज्यूमर खुद बता ही नहीं सकता है, उसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट एकदम क्लियरली बता नहीं सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लेटेंट डिमांड। जो जो ये नहीं बोल सकता है कि भाई मुझे मुझे कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, मुझे कौन सी चीज चाहिए, लेकिन उस वहां पे लेटेंट डिमांड, जैसे ज्वेलरी इंडस्ट्री है, क्लासिक एग्जांपल, कि ज्वेलरी इंडस्ट्री में आज की तारीख में कोई भी सक्सेसफुल रेंटल मॉडल नहीं है, लेकिन अगर आप कंज्यूमर को पूछोगे आपको रेंटल की रिक्वायरमेंट है, लो कॉस्ट ज्वेलरी, फैशन ज्वेलरी चाहिए, तो बोलेंगे हाँ, लेकिन बिकॉज ऑफ द एग्जीक्यूशन चैलेंजेस इसमें सक्सेसफुल मॉडल आज तक नहीं बना है, तो इसे हम कहते हैं लेटेंट डिमांड। सो योर आइडिया शुड ईदर एड्रेस a demand which is clearly there, a problem solution which is there, or it has to address something which is the latent demand जो आज तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया है। थर्ड, जब हम लोग आइडिया को इवेल्युएट करते हैं तो हम लोग ये सोचते हैं कि आपका जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है क्या ऐसा है कि आज तक किसी ने नहीं किया है, या अगर किया है तो आपको ये पता है कि इसको और इफेक्टिवली या एफिशिएंटली कैसे कर सकते हो, या आप कॉस्ट इफेक्टिव कर सकते हो, आप इसको बेटर फॉर्म में कर सकते हो। अगर आपके पास ये सॉल्यूशन है तो आपके पास एक नई आइडिया है। सिमिलरली जब आप कोई भी आइडियाज का अगर आप जब बिफोर इवन स्टार्टिंग वर्क ऑन इट अगर आप सोचते हो तो आपको 5 चीजें सोचनी है। सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि ये क्या कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। सेकंड होता है इसकी इम्पैक्ट क्या होगी। सी एवरी गुड बिजनेस आइडिया शुड हैव एन इम्पैक्ट। व्हाट इज इम्पैक्ट? दैट इट हैज टू इम्पैक्ट लाइव्स ऑफ पीपल। जब तक बिजनेस आइडिया अगर मिलियंस ऑफ पीपल की लाइफ को चेंज नहीं कर सकता है तो ये बिजनेस आइडिया बड़ी नहीं है। तो इम्पैक्ट कर सकता है क्या लाइफ को लोगों की। थर्ड होता है कि ये एग्जीक्यूटेबल है कि नहीं। ओके, क्या आप इसको एग्जीक्यूट कर पाओगे कि नहीं। भले एग्जीक्यूशन चैलेंजेस होगी लेकिन आप इसको एग्जीक्यूट कर पाओगे कि नहीं। फोर्थ होता है कि क्या ये सस्टेनेबल है क्या। अगर ये बिजनेस आइडिया आपने चालू की तो इसमें इकोनॉमिक्स बैठेगा कि नहीं, ये सस्टेनेबल है क्या, प्रॉफिटेबल है क्या। एंड सबसे लास्ट आता है कि ये स्केलेबल है क्या, कि आप समझो कि फॉर एग्जांपल काफी सारे बिजनेसेस होते हैं जो आइडियाज बहुत अच्छी होती है लेकिन इसको आप रेप्लिकेट नहीं कर सकते हो बहुत सारी जगहों पे, या उसको आप स्केल अप नहीं कर सकते। तो ये सब जो चैलेंजेस आती है ये समझना है कि ये स्केलेबल है कि नहीं। अगर आपके ये 5 पॉइंट अगर आप एड्रेस कर सकते हो तो क्लियरली आपकी बिजनेस आइडिया में दम है। सो ये आपको देखना है अगर आप नया कुछ कर रहे हो तो। फिर मैंने जैसे डिमांड काफी टाइम एक क्वेश्चन हाँ हाँ सीखे सॉरी आई मीन 2-3 लोगों ने पूछा अबाउट द यूनिकनेस ऑफ आइडिया, कि क्या हमारा स्टार्टअप आइडिया यूनिक होना चाहिए कि जो पहले हुआ नहीं हो वैसे आइडिया लेना चाहिए, या फिर उसका सिर्फ अगर रिक्वायरमेंट है, सोसाइटी में नीड है, मतलब यूनिकनेस पे कुछ लोगों का फोकस है कि क्या हमारा आइडिया यूनिक होना चाहिए बिफोर वी पिक एनी आइडिया फॉर अ स्टार्टअप। जैसे मैंने बोला आपकी आइडिया जो आपका प्रोडक्ट है वो यूनिक ना भी हो लेकिन आप उसको जिस तरह से एग्जीक्यूट करते हो वो भी अगर यूनिक हुआ तो आपकी आइडिया में दम है। ओके, सो फॉर एग्जांपल लेट्स लुक एट दिस वे कि फ्लीट टैक्सीज की रिक्वायरमेंट हमेशा थी। ठीक है, मेरू ने एक तरीके से की और उबर ने आके अलग तरीके से की। ठीक है, उबर सक्सेसफुल हो गया, I'm not talking about their profitability, वो सब चीजें अलग है। ठीक है,
लेकिन इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमर डिमांड या कंज्यूमर रीच सक्सेसफुल हो गया मॉडल, स्केल अप बहुत फास्ट कर पाया, मेरू जो नहीं कर पाया। तो यूनिक आइडिया नहीं थी, फ्लीट टैक्सी, रेडियो टैक्सीज, इन सब की रिक्वायरमेंट थी, हमेशा थी, ने इन यूनिक वे ये मॉडल को किया। तो जैसे मैं बोलता हूं कि आइडिया में प्रोडक्ट यूनिक होना जरूरी नहीं है, लेकिन आपका जो गो टू मार्केट है या अप्रोच है या एग्जीक्यूशन है वो यूनिक होना चाहिए। राइट। So I think in a nutshell, अगर रिक्वायरमेंट है उसका मार्केट में, इफ यू थिंक देयर इज अ मार्केट, अगर ऑलरेडी एक प्लेयर है बट चूंकि मार्केट में सैचुरेशन नहीं है, अभी आप कोई प्रॉब्लम को ऑलरेडी एक प्लेयर सॉल्व कर रहा है बट दैट इज नॉट सफिशिएंट, और मे बी यू कैन सॉल्व इट डिफरेंटली, आपका कोई इनोवेशन है या फिर उसका मार्केट में नीड है, तो यू कैन गो अहेड विद द एग्जिस्टिंग आइडिया बट विद योर इनोवेटिव टेक्निक्स ऑफ एग्जीक्यूशन। आई थिंक दैट्स अ वैलिड पॉइंट। And you know, I mean, just for the interest of the audience, I would like to tell कि after 5 minutes हम आप लोगों से आपके स्टार्टअप आइडिया समझेंगे कि आपके दिमाग में जो भी आइडिया है, मे बी भूषण विल एक्सप्लेन कि हम कैसे उनको क्विकली वैलिडेट कर सकते हैं, क्या टेक्निक्स हो सकती है। तो हम बाय द एंड ऑफ द डे टुडे, जितने भी लोग आज अटेंड कर रहे हैं, उनके पास एक या दो आइडियाज होना चाहिए, और कुछ आइडियाज को उनको रिजेक्ट भी करना चाहिए। आई मीन, आई थिंक, आई एम श्योर भूषण ने भी मुझे लास्ट सेशन में बताया था कि जनरली इन्वेस्टर्स पूछते हैं कि आपने कितने आइडियाज रिजेक्ट किए हैं इसको सिलेक्ट करने के पहले। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक आइडिया आया और आपने उस पर काम करना शुरू कर दिया, तो कुछ आइडियाज को हम रिजेक्ट भी करते हैं ताकि ड्यू डिलिजेंस करते हैं। तो भूषण विल एक्सप्लेन अस अबाउट दैट, बट द ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडे सेशन कि हम स्टार्टअप आइडियाज आप लोगों से सुने, और उन आइडियाज को, उनमें से कौन से आइडियाज का मार्केट है वो हम डिस्कस कर सकते हैं, कैसे आइडियाज को पिक करना है और क्या हम उनको कैसे वैलिडेट कर सकते हैं, वो हम इस सेशन में आगे डिस्कस करेंगे। यस भूषण। या सो अभी दो इंपॉर्टेंट पॉइंट जब मैंने आइडियाज का ये बताया, तो आइडियाज के बारे में एक इंपॉर्टेंट ये हो जाती है कि काफी स्टार्टअप्स को रिसर्च करने की रिक्वायरमेंट होती है, काफी स्टार्टअप्स इनफ रिसर्च नहीं करते हैं। आपकी आइडिया है, जब आप ये आइडिया सोच रहे हो तो ये समझ लीजिए कि कोई ना कोई बोर्ड रूम में ये आइडिया सोच सकता है, ठीक है। तो आप जब किसी भी चीज पे एग्जीक्यूशन चालू करो तो उसके पहले इनफ आप रिसर्च कर लो कि ये कौन कर रहा है, अगर वो कर रहा है तो कैसे कर रहा है, अगर फेल गया है तो क्यों फेल गया है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर कोई कर रहा है तो आप मत करो, लेकिन इनफ रिसर्च कर लो कि वो कहाँ गलत गया है और वो कहाँ सही गया है, ताकि आपको री इन्वेंट नहीं करना पड़े पूरा व्हील, ठीक है। और जैसे मैं बोल रहा था पहले, जो आपका क्वेश्चन था कि यूनिकनेस ऑफ द आइडिया, तो मैं अपने खुद के इन्वेस्टमेंट के बारे में बताऊंगा जो मध्य प्रदेश से है, द कबाड़ी वाला। अब ऐसा नहीं है, कबाड़ी वाला की रिक्वायरमेंट तो सालों से है, एडिक्वेटली आपके कबाड़ कलेक्ट करने के लिए लोग तो आते ही है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कोई चीज, सर्विस जो है वो कोई आपको मिल नहीं रही थी, लेकिन जो कंज्यूमर के प्रॉब्लम थे ये सर्विस के रिलेटेड, उसको यूनिकली कैसे सॉल्व कर रहे हैं, इसकी वजह से हम लोग ने कबाड़ी वाला में इन्वेस्ट किया। सो यूनिकनेस ऑफ एग्जीक्यूशन जो मैं पहले बोला था, उसके लिए मैंने एग्जांपल ये दे रहा हूं। इसके बाद जब आप प्रॉब्लम, जैसे आइडियाज का आप जब करते हो तो ये रिसर्च, इनफ रिसर्च कर लीजिए कि और कौन से प्लेयर ने क्या क्या किया है इस स्पेस में और कहाँ चैलेंजेस उन्होंने फेस किए। सेकंड है, काफी टाइम ऐसे होगा कि लोग आपको बोलेंगे कि नहीं इसमें तो एग्जीक्यूशन बहुत चैलेंजेस है, ये नहीं करना चाहिए। तो ट्रस्ट मी, अगर एग्जीक्यूशन चैलेंजेस नहीं होती तो इनफ कंपटीशन ऑलरेडी होती। सो डोंट गेट वरीड कि बहुत एग्जीक्यूशन चैलेंजेस बहुत है, आप इसमें अपना वे आउट ढूंढिए, लेकिन आइडियाज को सॉल्व करने के लिए एग्जीक्यूशन चैलेंजेस से आप मत डरिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। फिर आपको ये देखना है कि आपकी जो आइडिया है ये कितनी सस्टेनेबल है, इसके अंदर कोई यूनिक आपको स्किल सेट चाहिए, कोई एंट्री बैरियर है, इसमें कोई यूनिकनेस है कि ये आपने एंटर किया और कल उठ के 10 प्लेयर अगर रातों रात अगर एंटर कर सकते हैं, उसके बाद भी क्या आप जिंदा रह पाते हो कि नहीं, दैट इज इंपॉर्टेंट। काफी टाइम क्या होता है कि फर्स्ट मूवर अच्छा सक्सेसफुल नहीं होता है। सो आप अगर देखोगे तो ऑर्कुट वाज द फर्स्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ठीक है, एंड फेसबुक केम आफ्टर दैट, लेकिन सक्सेस फेसबुक हो गया। सो काफी टाइम ऐसे होता है कि आप सस्टेनेबल बना सकते हो कि नहीं आपका बिजनेस मॉडल, वो बहुत बहुत क्रिटिकल है। आप ये सोच रहे हो कि कंपटीशन नहीं आएगा तो ये थोड़ी गलत सोच होगी। तो यू हैव टू थिंक दैट ठीक है, कंपटीशन आएगी, कंपटीशन आने के बाद भी क्या मेरे पास ऐसी कोई स्किल सेट है कि मैं ये मॉडल को यूनिक रख सकूं, क्या मेरे पास इतना पैसा है, इतना सपोर्ट सिस्टम है कि मैं इसको यूनिक रख सकूं। सो हाउ विल आई कीप इट डिफरेंट एंड आई विल कीप इट सस्टेनेबल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू लुक एट एनी आइडिया। अगर आपको लग रहा है कि नहीं
और यू नो इनफ कंपटीशन, और मेरे पास कोई बड़ी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं रहेगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको क्लासिक अभी बताता हूँ, जैसे पीपीई मैन्युफैक्चरिंग है। सो पीपीई मैन्युफैक्चरिंग में आज बहुत सारे प्लेयर्स एंटर कर चुके हैं, डिमांड है, सब कुछ है। आपको पता है प्राइजेस ऑफ पीपीई 1200, 1500, 1800 रुपए से गिर गिर के आज 400 रुपए पे आ गई। ठीक है, तो ये अपॉर्चुनिटी कैसी है? ये शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शनल अपॉर्चुनिटी है, ये कोई बिजनेस आइडिया नहीं है, ये शॉर्ट टर्म आइडिया है, ट्रांजेक्शन है। आपने किया, आपने पैसा बनाया, आप निकल चुके। लेकिन इसको आप आइडिया, क्योंकि यहाँ पे जैसे जैसे वॉल्यूम आता है आपके प्राइजेस कट होते जाते हैं। फिर लास्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये था कि जिससे आपने ये जैसे बोला कि यूनिकनेस जब बोलते हैं, तो आपके पास एक ऐसा कोई डिफरेंशिएटर होना ही चाहिए जहां पे आप बोलो कि या तो आपके पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है, पेटेंट है, जिसकी वजह से आप यूनिक हो और आप सस्टेन कर लोगे मार्केट को, या फिर आपके पास जिस तरह से ये बिजनेस को एग्जीक्यूट करना है, ओके, उसमें आपके पास कोई अलग अलग मेथोडोलॉजी है जिसकी वजह से आप एफिशिएंट रह सकते हो। सो जैसे मैं बोलूंगा कि काफी कर सकते हैं, लेकिन इसको अगर लॉजिस्टिक बेसिस पे अगर किसी ने एफिशिएंटली अगर रन किया तो वो हमेशा प्रॉफिटेबल रहेगा और कंपटीशन कभी भी प्रॉफिट नहीं बना पाएगी। ठीक है, तो ये जो है ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जब अपनी आइडियाज को आप खुद इवेल्युएट करते हो। सो दिस इज हाउ नॉर्मली यू शुड गो अबाउट द प्रोसेस ऑफ यू नो सेल्फ इवेल्युएशन ऑफ योर आइडियाज। once you are comfortable, you have answered all these things, you have ticked everything, then you think through from an investor point of view, क्योंकि आपको हमेशा एक चीज सोचनी है कि इन्वेस्टर जो है वो साल में यू नो 2500 और आइडियाज देखता होगा। दिन की आप समझ लो 10 आइडियाज वर्किंग डेज की में अगर 10 आइडियाज अगर वो सोचता है, देखता है, अगर नए नए कंपनीज को वो देखता है, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ यू नो गेटिंग थ्रू इज वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, तो आपकी यूनिकनेस, आप जितनी भी गलती करनी है, जितना भी आपको डेविल्स एडवोकेट बनना है, जितना भी सोचना है, वो आप आइडिया स्टेज पे सोच लो। एक बार आपने अगर एग्जीक्यूशन चालू कर दिया, फिर ये सोचने का यहाँ पे अगर आप लोग को लग रहा है कि शेल्व करना है, जैसे मैंने सीके को बताया था, सीके के साथ मेरे प्रीवियस कॉन्वर्सेशन में बोला है कि इंक्यूबेटर जो है, इंक्यूबेटर being a startup that your startup idea is not good. Okay? कभी-कभी क्या होता है, हम अर्ली स्टेज में आइडियाज के लिए प्रमोटर्स को ये नहीं बोलते कि नहीं आपकी आइडिया में कोई दम नहीं है। ठीक है, अगर ये नहीं बोल सकता हूं मैं आज, तो मैं आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर समवन्स फेलियर इन गोइंग फॉरवर्ड। काफी टाइम मैं मिलता हूं लोगों को, स्टार्टअप्स को मिलता हूं, तो बोलते हैं कि यू नो जबलपुर में अभी जोमेटो नहीं आया, इसलिए मैंने जोमेटो का मॉडल जबलपुर में बनाया। लेकिन आपको ये समझना है कि जबलपुर में जिस दिन मार्केट बड़ी हो जाएगी तो जोमेटो वैसे भी आ जाएगा, तो क्या आप सस्टेन कर पाओगे जब जोमेटो उसमें आएगी? सो यू हैव टू थिंक सो ऑल दोस थिंग्स। अगर आपके आइडियाज में ये सब चीज अगर आपने नहीं सोची है एट द आइडिया स्टेज, देन यू नीड टू थिंक। इन सब के आंसर्स हो जाए, फिर आप सोचो कि अभी मेरे को एग्जीक्यूशन चालू करना है। यहाँ पे गलत होने में आपके कोई पैसे नहीं लगने वाले हैं। एक बार एग्जीक्यूशन चालू कर दिया, फिर आपके पास स्कोप फॉर एरर नहीं होती है। Yeah, I think Bhushan Jabalpur, Mr. Ashish Pathak ji. Good evening, sir. Hi. Hi, good evening. Good evening, CK. Good evening, Bhushan. You please Good evening, continue. sir. I'm just here to join you all. You just continue, please, Bhushan. नो सो मैंने सो सीके जैसे बात हुई थी कि मेरे थॉट्स मैंने रखे हैं एंड आई वुड लाइक इट टू बी मोर इंटरेक्टिव। सो लोगों को जो क्वेश्चंस है और जो एड्रेस करना है उसको करें। Yeah, so I think we can start taking startup ideas now. And as I said earlier कि आज हम ideas को validate भी करेंगे and we can share some techniques की जो ideas आपके पास में हैं, हम उसमें you know we'll just उसमें से कुछ select कर सकते हैं। So maybe if you can start sharing your startup ideas in comment section, we can take it one by one and start discussing that. तो भूषण, आई थिंक अभी एक का क्वेश्चन था स्टार्टअप आइडियाज को लेके, एक जो मिथ है कि हमारा आइडिया चोरी हो जाएगा, तो क्या हमको आइडियाज ओपनली पब्लिकली सोशल मीडिया में दोस्तों से शेयर करना चाहिए? वो एक बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि आइडिया लोगों को लगता है कि सोचा है बड़ी मेहनत से, हमने शायद कुछ यूनिक सोचा है, तो क्या उनको शेयर करना चाहिए या फिर काम करना चाहिए? एक होता है अगर आपको आइडिया चोरी होने से डर लगता है, ठीक है, सो आइडिया हम लोग हमेशा बोलते हैं इज ओनली 10% ऑफ द बिजनेस, 90% इज द एग्जीक्यूशन।
अगर आपकी आइडिया का चोरी होने का डर है तो आज नहीं तो जिस दिन आपने लॉन्च किया उस दिन तो चोरी हो ही जाएगी। सो इतना प्रोटेक्टिव अपने आइडिया के लिए मत रहिए। एग्जीक्यूशन अगर आप सक्सेसफुली करोगे तो ही आपका बिजनेस बनता है। हाँ, अगर ये है कि आपकी आइडिया में आप कुछ चीजें एकदम डिफरेंटली कर रहे हो तो आप लोगों को तब बताना चालू करो जब आपका प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट या प्रोटोटाइप बन गया है। ठीक है, तो आपको वर्ल्ड को अनाउंस नहीं करना है डे वन को कि आप क्या बिजनेस आइडिया पे काम कर रहे हो। आप उस लेवल पे लेके जाओ जहां पे प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। सो वी ऑलवेज से देयर इज ऑलवेज अ टाइम फॉर एनीवन टू रेप्लिकेट योर बिजनेस आइडिया। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी होती है कि वो 1 महीने के अंदर कोई रेप्लिकेट कर लेगा, कुछ चीजें होती है आप कौन से स्टेज पे हो। तो मैंने सिर्फ जब आइडिया बताई तो प्रोबेबली किसी को रेप्लिकेट करने के लिए 1 महीना भी नहीं लगेगा, लेकिन अगर मैं प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट लेवल पे चला गया और शायद प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बनाते बनाते किसी और को रेप्लिकेट करने को 6 महीना लग सकता है। सो 6 महीना इज योर लीड टाइम, दैट इज द टाइम। बट बिजनेस आइडिया चोरी होने के डर से कभी भी मत खेलिए। you cannot be so cagey about your idea. You have to share your ideas. Okay, so I think आइडियाज पे लेके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सेक्टर में आइडियाज उनको अभी सोचना चाहिए। अगर किसी के पास कोई आइडिया नहीं है, उन्हें आइडिया ब्रेनस्टॉर्म करना है कि ऐसा क्या सेक्टर है, सेगमेंट है जहां पे पोस्ट कोविड एरा में स्कोप बहुत अच्छा है या फिर जहां पे उनको मार्केट ज्यादा बेटर दिखता है, तो किस सेगमेंट को हम फोकस कर सकते हैं इस समय? मैं सेक्टर स्पेसिफिक नहीं बताऊंगा, लेकिन ये प्रोसेस को मैं समझाऊंगा थोड़ा सा। बिकॉज ऐसा कुछ नहीं है कि ये सेक्टर चले, मतलब ये सेक्टर पे फोकस करो। अगर मेरी स्किल सेट वो सेक्टर के रेलेवेंट है ही नहीं तो मैं क्यों उस सेक्टर के बारे में सोचूं। ठीक है, आज मुझे लग रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगी, लेकिन मेरी कैपेबिलिटीज अगर मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है तो मैं क्यों बिजनेस आइडियाज मैन्युफैक्चरिंग के बारे में सोचूं। पहले मेरी स्किल सेट समझनी है। सो फर्स्ट वी से इट्स ऑलवेज इंटरनलाइजिंग। आपकी स्किल सेट क्या है, व्हाट आर यू गुड एट, एंड देन अकॉर्डिंगली थिंक थ्रू द बिजनेस आइडिया। सेक्टर्स कभी भी आपको सोचना है ना तो प्रोसेस क्या होता है, आपको कंज्यूमर बिहेवियर देखना पड़ता है या आपको बिजनेस बिहेवियर देखना पड़ता है। मैं एकदम क्लासिक एग्जांपल हमेशा देता हूं कि पेशेंस लेवल ऑफ द कंज्यूमर हैज ड्रॉप्ड ओवर द इयर्स। सो जब मैं छोटा था तो दूरदर्शन ही चैनल्स थी, एक चैनल थी, एक प्रोग्राम के लिए शायद हम लोग 1 हफ्ता रुकते थे। महाभारत, रामायण, चित्रहार ये सब देखने के लिए पूरा 1 हफ्ता रुकते थे, एंड वी वर एक्साइटेड अबाउट सीइंग दोस प्रोग्राम आफ्टर अ वीक। सो दैट वाज डेफिशिएंसी ऑफ कंटेंट। उसके बाद जब चैनल्स आई, जब चैनल्स केबल सैटेलाइट आ गई, तब क्या हुआ, आपके पास धीरे धीरे ऑप्शंस बढ़ गए। ठीक है, लेकिन फिर भी मेरे पास इतना पेशेंस होना चाहिए कि मैं वही देख सकता हूं जो चैनल वाले दिखाते हैं। ठीक है, लेकिन मेरा पेशेंस लेवल कहां पे कम हो गया कि मुझे अगर एक चैनल पे कुछ अच्छा नहीं लगा तो तुरंत रिमोट कंट्रोल से मैं 1 सेकंड में वो चेंज कर देता हूं। तो ये मेरा कंज्यूमर बिहेवियर चेंज हुआ, और उसके बाद धीरे धीरे कंज्यूमर बिहेवियर इतना कम हो गया कि मुझे चाहिए, अभी चाहिए, जब मुझे चाहिए, जिस फॉर्म में चाहिए, जिस प्लेटफॉर्म पे चाहिए। सो राइट नाउ कंज्यूमर कंटेंट इज ऑन डिमांड। सो दैट इज बिकॉज हाउ डिड ऑल दीज थिंग्स कम इज बिकॉज ये कैटेगरी क्रिएट कैसे हुई, क्योंकि जिसने ये बिजनेसेस चालू किए उन्होंने ये अपॉर्चुनिटीज कंज्यूमर बिहेवियर को देखा कि कंज्यूमर बिहेवियर कैसे चेंज हुआ है और उसके हिसाब से अपॉर्चुनिटीज कैसे आई है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा कि आज की तारीख में ई पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म है। सो हम लोग को लगा कि लोग कंटेंट का व्यू रीडिंग बुक्स में मूव ऑनलाइन। ओके, एंड ऑल ऑफ अ सडन बिकॉज ऑफ द डेटा बिकमिंग सो चीप, व्हाट वी रियलाइज दैट कि लोग कंटेंट रीडिंग ऑनलाइन नहीं लेके गए, सीधा कंटेंट व्यूइंग ऑनलाइन लेके गए। ठीक है, सो पीपल चेंज द एंटायर वे ऑफ कंज्यूमिंग कंटेंट। तो ये सब होता है, ये कंज्यूमर डिमांड, ये कंज्यूमर बिहेवियर से लिंक्ड होता है। अराउंड टेक्नोलॉजीज क्या चेंज होती है, इसको आप ऑब्जर्व करो। अगर आप प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करोगे तो आपको खुद को ये आइडियाज, काफी सारे बिजनेस आइडियाज इसमें से मिलेंगे। ओके, एक दूसरा का क्वेश्चन है कि क्या ऑनलाइन वेजिटेबल डिलीवरी और ग्रोसरी, और जो हमें सडनली एक ट्रेंड चला है कि जोमेटो ने भी अपना जो कोर बिजनेस आइडिया को ला चुकी, उसकी डिमांड हमें दे आर कन्वर्टेड देयर यूजिंग देयर पीपल टू दिस सेगमेंट में कैश फोटो। दूसरा एक और क्वेश्चन है ऑनलाइन लिकर डिलीवरी का, शराब की डिलीवरी इम्पोर्ट बोला है, people even think about इंडिया में आगे चल के होगा। So
क्या सी दैट इज ये एक काफी सारा थोड़ा सा सीखे आपका वॉइस थोड़ा सा क्रैक हो रहा था, बट वट एवर आई अंडरस्टूड आप जो बोल रहे हो कि जोमेटो ने जैसे पिवटिंग किया अपने मॉडल का कि आज की तारीख में वो फूड डिलीवरी के बदले बाकी सब दे रही। सी ये इसको मैं सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स बोलता हूँ कोई भी बिजनेस की, कि आपने अपना बिजनेस जो डिफाइन है जब आप पिवट करते हो आप कैसे रीडिफाइन करते हो। तो आज तक जोमेटो ये बोल रहा था कि फूड डिलीवरी एट योर होम, आज वही जोमेटो बोल रहा है कि मेरे पास मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरे पास ऑन ग्राउंड डिलीवरी मैकेनिज्म है, मेरे पास ऑनलाइन लॉजिस्टिक एफिशिएंसी है। अब मैं इसके लिए कंज्यूमर को आज खाना चाहिए था होटल से, कल उसको खाना नहीं चाहिए होटल से, उसको लिकर चाहिए, प्रोबेबली परसों उसको कुछ और चाहिए। लेकिन मेरा प्लेटफॉर्म, मेरी जो स्ट्रेंथ है विच इज योर ऑन ग्राउंड डिलीवरी मैकेनिज्म एंड द लॉजिस्टिक, इसको अगर मैं यूज कर सकता हूं तो क्यों मैं अपना बिजनेस मॉडल पिवट ना करूं। एंड इट्स अ राइट वे टू लुक एट दीज बिजनेसेस। एवरी बिजनेस हैज टू थिंक दैट वे कि मैंने कोई एक बिजनेस मॉडल एक पर्टिकुलर चीज के लिए किया था और मैंने कुछ अपनी स्किल सेट या स्ट्रेंथ डेवलप की। अगर कंज्यूमर डिमांड चेंज हो रही है तो उसके हिसाब से मैं अपनी स्ट्रेंथ कैसे यूज करूं। ठीक है, सो आई विल गिव यू एग्जांपल वन ऑफ माय इन्वेस्टमेंट ओनली। सो हम लोग ने इन्वेस्ट किया है एक कंपनी में जिसमें टेम्परेचर कंट्रोल वेरेबल प्रोडक्ट्स है। अब उसकी रिक्वायरमेंट स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, ऑटो इंडस्ट्री, काफी सारी इंडस्ट्री को है। वोंट बिलीव ये चेंज देख के एंड पीपल की जो चैलेंजेस है, जो पीपी किट्स पहनते हैं या उसमें, तो हम लोगों ने कूलिंग शील्ड्स निकाली क्योंकि हमको पता है कि पीपी किट्स के अंदर काफी गर्म होता है। ठीक है, तो उनके लिए हम लोग ने कूलिंग शील्ड्स निकाली। तो इसको तो मैंने क्या किया, मेरी टेक्नोलॉजी जो थी कूलिंग टेक्नोलॉजी, वो मेरी स्ट्रेंथ है, इसको मैं कैसे एप्लीकेशन को यूज करूं, कहां पे पिवट करूं, ये कॉल लेना बहुत जरूरी होता है। तो इससे रिलेटेड है ई कॉमर्स सेगमेंट में, जैसे आपने बोला कि मशीनरी होगी तो आप सर्वाइवल के लिए चेंज योर प्लान हियर एंड देयर। लेकिन अगर मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे सिमिलर प्लेयर्स हैं, फॉर एग्जांपल भोपाल की हम बात करें, जबलपुर की बात करें, इंदौर की बात करें, सिमिलर स्टार्टअप्स हैं हमारे पास, लेकिन क्या इस समय काफी लोग ई कॉमर्स में आ रहे हैं, तो वुड यू सजेस्ट स्टूडेंट स्टार्टअप ई कॉमर्स सेगमेंट में और लोगों को आना चाहिए? क्या इस समय मार्केट डिमांड आपको लगता है कुछ और प्लेयर्स नहीं, सो थोड़ा सा मैं अलग इसमें बात करूंगा कि जब आप स्टार्टअप को डिफाइन करते हो ना, तो मैं स्टार्टअप को यही डिफाइन करता हूं कि नया बिजनेस है। ठीक है, आई पुट इट इन अ कैटेगरी ऑफ एसएमई। मैं बोलता हूं ये नया बिजनेस है। एज एन एंटरप्रेन्योर आई वांट टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस और पहले 10 साल में वो स्टार्टअप है। दैट इज द ओनली थिंग। अब जरूरी नहीं है कि मैं कुछ नई टेक्नोलॉजी यूज करके ही मैं बिजनेस चालू करूं, उसी को मैं स्टार्टअप नहीं बोलूं। अगर मैं समथिंग मैं जोमैटो, ओला, उबर या फ्लिपकार्ट जैसा कुछ चालू करूंगा तो ही मैं स्टार्टअप कहलाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। सो अगर आपको लग रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग वाली है, तो मैन्युफैक्चरिंग के अराउंड काफी सारी एंसिलरी बिजनेसेस जहां पे टेक सपोर्ट विल बी रिक्वायर्ड, ऐसी अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होगी। सो फॉर एग्जांपल मैंने एक अर्लियर सेशन में एक बात की थी, स्किल डेवलपमेंट। अब स्किल डेवलपमेंट के लिए मैं समझो आज की तारीख में एडटेक प्लेटफॉर्म बोलता हूँ। एडटेक प्लेटफॉर्म को अपने लोग स्टार्टअप बोलते हैं। अब एडटेक प्लेटफॉर्म जब बायजूस करता है फॉर स्टूडेंट्स, फॉर स्कूल स्टूडेंट्स, बट यही चीज प्रोबेबली मेरे को स्किल डेवलपमेंट में मैन्युफैक्चरिंग लेबर के लिए कर सकता हूं मैं। कैन आई डू दैट? ओके, सो अपॉर्चुनिटी मैन्युफैक्चरिंग में आई, लेकिन मैंने अपनी एंसिलरी बिजनेस उसके अराउंड क्रिएट किया कि नहीं, तो वो मैं कर सकता हूं। सो आज भी ये स्टार्टअप काफी सारे ऐसे सोच सकते हैं। ओके, और दूसरा एक सेक्टर है जो एजुकेशन स्टार्टअप, एडटेक की जो आपने बात की, काफी लोग इस समय बायजूस आने के बाद 3-4 और स्टार्टअप सेक्टर जिनको काफी फंडिंग में मिला। So what's your take on that? Considering the market size of Madhya Pradesh and a similar states like Chhattisgarh and few other states, क्या एडटेक में और स्टार्टअप को आना चाहिए या फिर ये गॉड इनफ स्टार्टअप इन दिस सेगमेंट? सो इसीलिए सो अगेन थोड़ा सा मैं अपने प्रीवियस आंसर के साथ में इसको ज्वाइन करूंगा। सी चैलेंजेस क्या होती है कोई भी ऑनलाइन बिजनेसेस में या न्यू टेक्नोलॉजी बिजनेसेस में। पहले को जो अपने बिजनेसेस जो थे ब्रिक एंड मोर्टार बिजनेस में, वहां पे कोएग्जिस्टेंस पॉसिबल होता है कि एक मार्केट में 30-40 प्लेयर हो सकते हैं। ओके, ब्रिक एंड मोर्टार में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी लिंक्ड बिजनेसेस आते हैं तो कोएग्जिस्टेंस उतना डिफिकल्ट होता है, एंड यू हैव अ मार्केट व्हिच इज ईदर डुओपोली और प्रोबेबली 3 और 4 प्लेयर इन द मार्केट। वो धीरे धीरे श्रिंक होती जाती है। तो ऑब्वियसली अगर आप यही करते हो कि आप जो चीज बायजू ने की है आप उसी सेगमेंट को केटर कर रहे हो और उसी फॉर्मेट में केटर कर रहे हो,
देन यू विल नेवर बी एबल टू compete with बायजू, बिकॉज बायजू के पास काफी पैसा है, ठीक है। लेकिन व्हाट इज एडटेक? एडटेक इज एजुकेशन यूजिंग टेक्नोलॉजी, ओके। आई एम सेइंग सिंपल थिंग, एजुकेशन यूजिंग टेक्नोलॉजी। अब एजुकेट कर रहा हूं, ये तो चेंज हो सकता है। मैं जरूरी नहीं है स्कूल के बच्चों को मैं अगर स्कूल के रिलेटेड एजुकेशन देता हूं वही एडटेक हुआ। हो सकता है मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की भी ट्रेनिंग करूं तो वो भी एडटेक है। आज मैं अगर मैं प्लेटफॉर्म क्रिएट करूं जहां पे हर एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करने वाले जितने भी है उसका मैं एग्रीगेशन करूं, सो कोई ड्राइंग सिखाता है, कोई क्राफ्ट सिखाता है, कोई म्यूजिक सिखाता है, इनका पूरा प्लेटफॉर्म क्रिएट करूं और रिमोट एजुकेशन उसका मैं करूं तो दैट इज ऑल्सो एडटेक। मैं अगर समझो स्किल्ड लेबर के लिए मैं कुछ करूं तो वो भी एडटेक हुआ। सो एडटेक की आप डेफिनेशन थोड़ी बड़ी करिए, स्कूल स्टूडेंट्स को ही जरूरी नहीं एडटेक। या फिर समझो मैं कोचिंग क्लासेस है, कोचिंग क्लासेस को नेक्स्ट फ्यू इयर्स में कोचिंग क्लासेस को प्रॉब्लम होगा कि नेक्स्ट फ्यू मंथ्स सॉरी कि स्टूडेंट्स विल नॉट बी एबल टू गो देयर, तो आप उन लोग के लिए पूरा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप कर सकते हो, उनके लिए वर्चुअल क्लासरूम क्रिएट कर सकते हो, उनकी जो नोट्स है उनकी जितने भी है उसका आप ई लाइब्रेरी क्रिएट कर सकते हो। अगर आप वो क्रिएट कर सकते हो तो आपने नया सेगमेंट क्रिएट किया एडटेक में। Okay. Our next question in the similar line is कि when we start a venture, जब कोई startup शुरू करते हैं, जो कि सारे startup they end up selling the same startup to someone else, कोई बड़े player को हम startup अपना दे देते हैं, तो that's how we start thinking about our plan and execution। तो इसीलिए मेरे ख्याल से क्योंकि आप एक इन्वेस्टर भी हैं तो आप इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता पाएंगे कि क्या हमें उसी पैटर्न के सोचते हुए स्टार्टअप को बढ़ाना है जो हमारा वैल्यूएशन का मेथड भी है, VC मेथड, वो उसी कॉन्सेप्ट में कि कोई आपको आगे परचेज करेगा। तो डू यू थिंक वी शुड चेंज दैट प्लान कि हमें आगे कुछ इन्वेस्टर पैसा लगाएगा उसी स्टार्टअप में उनको सोचना चाहिए, या फिर वी शुड नाउ देयर इज अ टाइम वी शुड चेंज दैट थिंकिंग प्रोसेस? सो यहाँ पे क्या होता है, जो मैंने पहले बोला कि काफी 80% ऑफ द स्टार्टअप्स है उनका बिजनेस आइडिया जनरेट कैसे होता है कि कहीं पे यूएस में कोई कंपनी ने, और ये सेक्टर में यूएस में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो इसीलिए हर बार वो एक हर्ड मेंटालिटी होती है। तो उस हिसाब से अगर सोचते हैं तो उनमें क्या होता है, तो उन लोग का माइंडसेट हर एक टाइम यही होता है कि मैं इसमें स्टार्टअप चालू करता हूँ, यहाँ पे इन्वेस्टर पैसा डालेगा और फिर मुझे एग्जिट मिल जाएगी। अब होता क्या है, इन्वेस्टर, एक चीज याद रखिएगा, इन्वेस्टर डजंट मैरी टू योर बिजनेस, इन्वेस्टर इज आउट देयर फॉर रिटर्न्स, ठीक है। ऑल्सो रिमेंबर, इन्वेस्टर विल बी रूथलेस अगर उसको वो बिजनेस में से कंप्लीटली पुल आउट भी करना होगा, उसको कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं होगा। सो आप अगर एज अ प्रमोटर, अगर मैं इन्वेस्टर के माइंडसेट से सोचूंगा तो ये गलत बात है। मैं जब बिजनेस सोचता हूं तो मुझे क्या करना है उसके हिसाब से सोचना, अप्रूव करेंगे इन्वेस्टर, किसको डिसअप्रूव करेंगे, इन्वेस्टर क्या सोच रहा है। और इसलिए सेकंड क्या होता है, बिकॉज आपने आइडियाज है जो कॉपी की है, बड़े प्लेयर जहां पे फंडिंग होता है उसको आपने कॉपी किया है, इसीलिए आपका एग्जिट रूट यही होता है कि आप किसी बड़े प्लेयर को अपना बिजनेस बेच दो, ठीक है। लेकिन ऐसे अगर मेरी आइडिया यूनिक है, जहां पे मैंने बिजनेस उस हिसाब से चालू किया कि ये यूनिकनेस ये बिजनेस में मैं खुद कर सकता हूं, और यहाँ पे इट इज समथिंग विच इज डन फॉर द फर्स्ट टाइम, देन हो सकता है कि मेरी आइडिया, मतलब कल उठ के मुझे I don't need anyone to buy me out. I can go and IPO my company. I have to think like that. As a promoter, I have to be married to my business. Investor is never married to the business. ठीक है, ये थोड़ा सा the way thinking जो होती है ना प्रमोटर्स की स्टार्टअप में, ये थोड़ी चेंज होनी जरूरी है। आप पूरा टाइम ये मत सोचो कि वेंचर कैपिटलिस्ट क्या सोचेगा, इन्वेस्टर क्या सोचेगा। इन्वेस्टर कुछ भी सोचे, अगर आपको कन्विक्शन बिजनेस में, आप अपने हिसाब से सोचे आपके लिए क्या सही है। So, होगा, एग्जिट रूट चेंज होंगे। Right. So we can take the next question. It's about the knowledge of app and web. काफी लोगों ने बोला है कि क्या वेबसाइट और मोबाइल ऐप पे ही हमारा फोकस रहना चाहिए, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डिजिटल हो गया है, और या फिर दे शुड थिंक ऑफ मोर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। सो आई थिंक सो, अगर प्रोडक्ट मेरा ऑफलाइन है, ओके, मेरा प्रोडक्ट अगर ऑफलाइन है तो मुझे सिर्फ ऑनलाइन पे फोकस करना जरूरी नहीं है। सो मैं आपको एग्जांपल दूंगा, जैसे ऑनलाइन जितनी भी एपरल ब्रांड्स है, ओके, ट्रस्ट मी, इवन उसका स्केल है ना, 90% ऑफ द एपरल ब्रांड्स और प्रोडक्ट ब्रांड्स ऑनलाइन, ओके, आर नॉट मेकिंग मनी, दे आर मेकिंग मनी ऑन देयर ऑफलाइन चैनल।
सो ऑनलाइन चैनल से अगर आपको लग रहा है कि आप सिर्फ ऑनलाइन चैनल से ही प्रॉफिटेबल होंगे, तो वैसा नहीं है, आपको ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पे फोकस करना पड़ेगा आपके जो प्रोडक्ट्स हैं। ओके, सो टेक्नोलॉजी क्या है, आपका मोबाइल टेक प्लेज डिफरेंट रोल। या तो वो आपके लिए एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, या फिर आपके लिए वो बिजनेस एनेबलर है, या फिर आपके लिए वो एक मार्केटिंग टूल है। ठीक है, लेकिन आपका काफी सारा ब्रांड तभी क्रिएट होता है अगर आप ऑफलाइन प्रेजेंस आपकी स्ट्रॉन्ग है तभी। तो आप ये देखिए कि कैरेट जितने भी है, कैरेट ले लीजिए, कार्ट ले लीजिए, सब लोग ने स्टार्टिंग पॉइंट ऐप के साथ किया, लेकिन आज सब लोग ओमनी चैनल की बात कर रहे हैं, सब लोग को ऑफलाइन तो आना ही पड़ा। सो आपको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आपके बिजनेस के हिसाब से रेलेवेंट है, तो आपको ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन देखना ही पड़ेगा। यहाँ पे एक थोड़ा सा डिफरेंस मेरा ये होता है कि स्टार्टअप्स को अभी धीरे धीरे कोलैबोरेटिव ग्रोथ के हिसाब से सोचना पड़ेगा ऑन द ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, आप ये मत सोचो कि आप अकेले इस मार्केट को कैप्चर कर सकते हो, तो आपको हमेशा ऐसी चैनल ढूंढनी पड़ेगी जो ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नहीं है, बट ऐसी चैनल है जो जिनकी प्रोडक्ट लाइन इज कॉम्प्लीमेंटिंग टू योर प्रोडक्ट लाइन, एंड कैन यू पार्टनर विद देम। सो जस्ट गिविंग एग्जांपल हियर, सो वन ऑफ आवर कंपनीज व्हिच इज इनटू फ्लीट मैनेजमेंट सॉल्यूशन, उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है और इंस्टॉलेशन भी होता है। सो आज हमने क्या किया है, उसी के लिए ऐसी कंपनीज के साथ टाई अप किया है जिनका बिजनेस है सर्विसेज का। ओके, और ऑन ग्राउंड उसके पास इंस्टॉलेशन की टीम होती है। तो मैंने आज उनके साथ कोलैबोरेटिव ग्रोथ किया है ताकि मेरा इंस्टॉलेशन और ये सब सर्विस आई टू क्रिएट माय टीम एंड ही बिकम्स माय चैनल पार्टनर। सो ऑफलाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। So, we are getting a lot of good startup ideas. काफी लोगों ने अपने startup ideas शेयर करे हैं। मोस्टली लोगों का ई-कॉमर्स या हेल्थ केयर या इस समय एडटेक रिलेटेड ही है। पर आई थिंक वी शुड टॉक लिटिल बिट अबाउट वैलिडेटिंग द स्टार्टअप आइडिया। अगर उनके पास आइडिया है तो कौन से दो या तीन तरीके हो सकते हैं तो ज्यादा एफर्ट लेकर अपने आइडिया को वैलिडेट करें। ठीक है, सॉरी आपका थोड़ा सा वॉइस क्रैक हुआ, आई डोंट नो वेदर थोड़ा सा आपका वॉइस, इफ यू कैन रिपीट। टॉकिंग अबाउट द स्टार्टअप वैलिडेशन स्टेप्स, कि जो स्टार्टअप आइडियाज हमने लिखे हैं उनको हम कैसे वैलिडेट कर सकते हैं बिफोर स्टार्टिंग, बिफोर इवन क्रिएटिंग द एमवीपी। क्या हमारे पास कोई तरीके कि हम शुरू में किन स्टार्टअप आइडियाज को रिजेक्ट करें, किन स्टार्टअप आइडिया को सिलेक्ट करके आगे बढ़ें? ओके, सो इसमें दो प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। तो एक प्रोसेस तो स्टार्टअप इवैल्यूएशन करते हो, तो जैसे मैंने बोला कि इसका 3 स्टेप्स हो सकते हैं। फर्स्ट स्टेप आपसे ये समझो कि ये आइडिया उनको आई कहां से। ओके, इन टर्म्स ऑफ व्हाट वाज द ओरिजिनेशन ऑफ द आइडिया, did they face some problem, did they see some problem and that's how they have come up with an idea, or is it that they read about such idea somewhere else and that's the reason they have got into this startup? तो सबसे पहले आपका इवैल्यूएशन मैट्रिक्स वो होना चाहिए। सेकंड इवैल्यूएशन मैट्रिक्स जो मैंने 5 पॉइंट बताए कि प्रॉब्लम सॉल्यूशन, इम्पैक्ट, एग्जीक्यूटेबल, सस्टेनेबल एंड प्रॉफिटेबल, ये हो सकते हैं कि नहीं बिजनेस आइडिया, आप सेकंड पॉइंट इस पे देखिए। और थर्ड जो होता है, थर्ड जब भी हम लोग इवैल्यूएट करते हैं तो क्या करते हैं, यू बी एक्सट्रीमली डेविल्स एडवोकेट विद द प्रमोटर एट द फर्स्ट स्टेज स्टार्टअप आइडिया वैलिडेशन। काफी टाइम क्या होता है मन में कि अगर प्रमोटर का खुद का पैशन नहीं होगा वो आइडिया के अराउंड, तो ट्रस्ट मी ही विल नॉट बी एबल टू सस्टेन 3 राउंड ऑफ कॉन्वर्सेशन विद यू। 3 डिबेट उसके साथ करो, बी द बिगेस्ट डेविल्स एडवोकेट, और अगर वो 3 राउंड आपके साथ सस्टेन नहीं कर सकता है उसके अंदर, ओके, 90% ऑफ द टाइम ही विल गिव अप द आइडिया। ओके, अगर वो कर लेता है और अगर आपको उसमें पैशन दिखी, ओके, देन दैट्स अ बेस्ट स्टार्टअप वर्जन। फिर आपको उसमें पिवटिंग चाहिए, पिवटिंग होगा, एग्जीक्यूशन स्टाइल चेंज करनी होगी, वो आपको सब सुनेगा, लेकिन 3 सेशन आपको ये करने पड़ेंगे कि जहां पे आप ये चेक करोगे कि इज ही पैशनेट अबाउट दैट आइडिया और नॉट। Okay, so yesterday there was a question about what should be the first golden step of starting a startup. वो हमने कल डिस्कस किया कि आपका पैशन होना चाहिए, आपके पास स्टार्टअप आइडिया होना चाहिए, और अभी आपने बताया कि स्टार्टअप आइडिया को हमें वैलिडेट करना चाहिए। हमने स्टार्टअप आइडिया वैलिडेट कर लिया, आगे बढ़ रहे हैं। तो what should we do about it? What should be the next immediate step after this? CK, there is some network issue on your end. आपका वॉइस थोड़ा सा क्रैक हो रहा है बीच में। Okay, I was saying कि हमने स्टार्टअप आइडिया सेलेक्ट कर लिया, उसको वैलिडेट कर लिया, what should be the next step after that to implement that idea? मतलब उसको अगर हम स्टेप्स में डिफाइन करें, what should be the immediate next step? Sorry.
CK, if you can repeat it. I mean, what should be the next Hello? step after startup idea validation? So startup idea validation के बाद आपको पूरा डिफाइन करनी है 3 से 4 चीजें. सबसे पहले आपका प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट या सर्विस जो भी होगी उसको विजुअलाइज करो, उसको डॉक्यूमेंट इट, एग्जैक्टली व्हाट द प्रोडक्ट विल बी, और इफ इट इज एन ऐप ड्रिवन बिजनेस व्हाट द ऐप विल बी डूइंग, व्हाट ऑल, हाउ यू विल एग्जीक्यूट. सो वो उसको डिफाइन करो सबसे पहले. वो डिफाइन करने के बाद आप बोलो इसमें ये पूरे वैल्यू चेन में, ये पूरे प्रोडक्ट में, सो हर एक बिजनेस का एक वैल्यू चेन होता है, उसमें से आप क्या ओन करना चाहते हो और क्या आप आउटसोर्स करना चाहते हो. ठीक है, उसके हिसाब से आपको पता चलेगा कि कौन सी स्किल सेट आपको इंटरनली रिक्वायर्ड है. तो ये असेसमेंट करो कि कौन सी स्किल सेट आपको रिक्वायर्ड है ये बिजनेस एग्जीक्यूट करने के लिए हर लेवल पे. सो दैट विल डिसाइड व्हाट इज द टीम रिक्वायरमेंट यू हैव. एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट विल बी, आप इसमें आपकी गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी जब बनाते हो, साथ में आप एग्जीक्यूशन टाइमलाइंस डालो, तो आपको ये पता चलेगा कि रिक्वायर्ड होगा. तो ये 3 चीजें नॉर्मली होती है. सो जस्ट टू रिपीट, फर्स्ट वन इज वेर यू डिफाइन योर एंटायर प्रोडक्ट. Okay, entire product or services, whatever it is. Second is define the skill set or the which part of the value chain you are owning, and accordingly क्या skill set आपको in house चाहिए होगा. And third part is the go to market approach and the execution timelines. I think there's a question here which I selected also about this online medicine delivery. तो इसमें काफी लोग इतना एक्सप्लोर कर रहे हैं कि इसका अगर आपको क्या इसमें आपको लीगल या ऑपरेशनल चैलेंजेस समझ में आते हैं. ओके, सो मेडिसिन डिलीवरी है. सो आज की तारीख 2 पार्ट है कि आज की तारीख में एक सेकंड, सो आई जस्ट रीड थ्रू अगेन. सो ऑनलाइन मेडिसिन डिलीवरी. ओके, सो सी medicine delivery में anyways it's not something a new idea. There are enough players right now in that segment, be it PharmEasy हो या 1mg हो या MedLife हो. So काफी सारे players उस स्पेस में है. हर एक का मॉडल डिफरेंट है, लोगों ने अलग अलग तरीके से सोचा है, लेकिन सब लोग सेट लाइट मॉडल से जा रहे हैं जो अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल उन लोगों ने डिफाइन कर दी है. अब यहाँ पे आप कहाँ डिफरेंशिएटर क्रिएट कर सकते हो इज, अगर आप समझो पूरा नेटवर्क उस हिसाब से क्रिएट कर सकते हो कि कहीं अक्रॉस इंडिया के रूरल में. सो प्रॉब्लम कहाँ पड़ा है, फॉर अ पर्सन इन अ सिटी, होम डिलीवरी ऑफ मेडिसिन is not as much as a need as much it is a want. But the moment you go into the, so ये जो issues है आपकी, जो expiry के related आपने जो बोला है, ये clarification knowledge है, ये काफी सारा आपका smaller villages और यहाँ पे requirement है. तो आप अपना niche वहाँ पे create करना है तो आप उसमें सोच सकते हो. With regards to medical legal risk and everything, obviously you know there are a lot of because and that's the reason इन लोग सबने ये define किया है कि मैं I am not the supplier. I am just a platform जिसके थ्रू आप ऑर्डर कर सकते हो, and I am just a facilitator. जब मैं फैसिलिटेटर और सर्विस प्रोवाइडर हूं तो मेरे पे मेडिको लीगल रिस्क इतने हाई नहीं है. ओके, अगर मैं खुद सप्लायर हूं, अगर मैंने अपनी बुक्स पे मेडिसिन लेके फिर आगे बेचा तो ऑब्वियसली यू नो मेडिको लीगल रिस्क मेरे पे उतने ही आते हैं. स्टार्टअप इन रूरल सेक्टर, ये मध्य प्रदेश के हमारे यहाँ पे यू नो मोस्ट ऑफ दी सिटीज आर नॉट येट डेवलप्ड. तो रूरल सेक्टर में आपको किस तरह के स्टार्टअप की संभावना मध्य प्रदेश में नजर आती है? सो ऑब्वियसली यू नो रूरल सेक्टर की चैलेंजेस क्या है अगर अपने लोग डिफाइन करते हैं तो रूरल सेक्टर की चैलेंजेस है. एक होता है कभी भी एक्सेस. व्हाट इज दैट एक्सेस? सो एक्सेस टू नॉलेज व्हिच इज रिक्वायर्ड, access to certain facilities, okay, access to market. काफी सारे बिजनेस में होता है कि बस उसको access to market चाहिए. Access is an issue. And second होता है, एक तरफ access होता है. So if I am a business guy, मेरे प्रोडक्ट का या मेरी सर्विसेज का मुझे या मुझे जो चीजें चाहिए उसको मैं बाहर के मार्केट में कैसे एक्सेस दे सकता हूँ. और सेकंड साइड होता है अवेलेबिलिटी. जैसे मेडिसिन की बात की तो इश्यू होता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ दोज मेडिसिन, और ये सब चैलेंज होती है. सो मैं नॉर्मली रूरल सेक्टर में, अगर आप रूरल सेक्टर की इनएफिशिएंसी का एक सबसे बड़ा रीजन होता है कि इंफॉर्मेशन गैप जो धीरे धीरे कम हो गया है, काफी सारा कम हो गया है.
तो आप अगर उसमें सोच सकते हो, ओके, कि इंफॉर्मेशन, सो विच आई से दैट एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, एक्सेस टू नॉलेज, विच मीन्स अगर आप वहां पे ओवरऑल लिटरेसी लेवल कम है या एजुकेशन की रिक्वायरमेंट या क्वालिटी एजुकेशन की, ऐसा नहीं है वहां पे स्कूल्स नहीं है, ओके, लेकिन आप उसको जो स्मार्ट क्लासेस आज सिटीज में होंगे उस टाइप से एजुकेशन क्या आप रूरल में दे सकते हो, ठीक है, तो एक्सेस टू एजुकेशन होता है, तो ये दे दो। थर्ड होता है इंडिया में अनफॉर्चुनेटली काफी सारी चीज की एक्सेस टू बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके, प्रॉब्ली इन टर्म्स ऑफ पावर है, इन टर्म्स ऑफ वाटर है, इनकी भी जरूरत है। तो अगर आपका स्टार्टअप आइडिया अगर इनमें किसी में काम करता है, हाउ कैन यू वर्क ऑन द प्योरिफिकेशन ऑफ द वाटर और लाइट, इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंसी पे कुछ काम कर सकते हो रूरल सेक्टर में, अवेलेबिलिटी ऑफ गैस सप्लाईज, ऑल्टरनेट गैस सप्लाईज है, इस पे कुछ काम कर सकते हो, तो ये भी स्टार्टअप आपका रूरल सेक्टर में हो सकता है। एंड थर्ड, जैसे मैंने बोला कि एक्सेस टू द के जो प्रोडक्ट्स है, और हमेशा इन लोग का नुकसान यही होता है कि ट्रेडर्स एंड एवरीवन मेक मनी बिकॉज दे डोंट हैव एन एक्सेस टू द एंड कंज्यूमर दे सकते हो, ठीक है, तो ये तीन चीज मेरी एक्सेस में आ जाती है। और जैसे मैंने अवेलेबिलिटी बोला, तो अवेलेबिलिटी में जैसे मेडिसिन अवेलेबिलिटी है, वैसे ही काफी सारे कंज्यूमर प्रोडक्ट है, ओके, बिकॉज कंज्यूमर ब्रांड्स भी आज की तारीख में होती है कि दे हैव लिमिटेशंस के बाद वो 5000 प्लस विलेज होगा तो वहां पे मेरा फीडर मार्केट होगा, या 1 लाख का होगा तो वो फीडर मार्केट होगा, 5 लाख में मेरा खुद का बंदा नहीं होगा, सो ऑल दोस चैलेंजेस, सो व्हाट ऑल brands or what all product can you make available to these rural market, तो ये आपका second side, so always it's about the access and availability. I think the question है शुभम का, we can take that, how to differentiate between B2C and B2B ideas. I think in the interest of these people, if you can elaborate B2C and B2B for them. Okay, so B2C is where the end retail consumer individual is your customer and also the consumer, okay, he's not just your customer, he is also the consumer of the product, so that is what we call the B2C. B2B is where the business, okay, a corporate, he is my customer as well as the consumer of the services, okay, so then it is a B2B. And the third thing is B2B2C, where my customer is a business but my consumer is the end retail consumer, okay, that is what we call the B2B2C. So that's the difference between three things. So always you have to understand there is a difference between customer अलग होता है और consumer अलग होता है. Customer वो है जो आपसे खरीदता है, consumer वो है जो आपकी सर्विसेज या प्रोडक्ट यूज करता है. है कि क्या प्राइवेट इंक्यूबेशन सेंटर से इंक्यूबेशन लेना चाहिए? आई विल टेक दैट क्वेश्चन. बिल्कुल लेना चाहिए. आपको सही सर्विसेज मिल रहा है, आपको प्रॉपर मेंटोर मिल रहे हैं, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल रहा है और आपका एक्सपर्टेशन नहीं हो रहा है इन टर्म्स ऑफ मनी, देन व्हाई नॉट? गवर्नमेंट प्राइवेट, आई थिंक द ओनली डिफरेंस इज गवर्नमेंट डोंट चार्ज. Some private incubation centers may charge some amount. So लेकिन अगर आप प्राइवेट इंक्यूबेशन को देखें, क्या उसके सर्विसेज स्टार्टअप मिलने चाहिए? Sorry. See, I'm sorry if you can just repeat the last line. About the private incubation center, कि क्या स्टार्टअप को प्राइवेट इंक्यूबेशन सेंटर की सर्विसेज लेनी चाहिए? So, okay. See, frankly speaking, ये डिफरेंशिएट मत करो कि प्राइवेट इंक्यूबेशन सेंटर है या पब्लिक गवर्नमेंट इंक्यूबेशन सेंटर है. आपको ये देखना है कि इंडिया में अभी तक ये पूरा जो इकोसिस्टम है वो डेवलप हो रहा है. अपने वी आर वेरी अर्ली इन दिस एंटायर स्टार्टअप इकोसिस्टम. ये डेवलप हो रहा है तो हर एक जनों का लर्निंग का होगा, प्राइवेट का भी लर्निंग का होगा और पब्लिक का भी लर्निंग का होगा. वो धीरे धीरे करके ही वो होंगे. लेकिन आई डोंट थिंक यू शुड डिफरेंशिएट कि प्राइवेट इंक्यूबेशन सेंटर है या पब्लिक इंक्यूबेशन सेंटर है. जब तक आपको इकोसिस्टम में जो रिक्वायर्ड चीजें हैं, विच इज राइट मेंटरशिप, राइट कॉर्पोरेट कनेक्ट, एक्सेस टू इन्वेस्टर्स और गुड फैसिलिटीज, अगर ये चार मिल रही है, देन इट रियली डजंट मैटर वेदर इट्स अ प्राइवेट और अ पब्लिक. I think there's some sound problem with my laptop today, so I'm sorry about it. There's a lot of comments saying that my voice is really very bad today. I'm so sorry about it. I apologize.
I would rather use a headset from tech. मुझे कंस्ट्रक्शन एरिया से काफी क्वेश्चन अगर आप कंस्ट्रक्शन एरिया से बात करें और एक फिल्म इंडस्ट्री है मुंबई में कुछ लोगों ने फिल्म इंडस्ट्री में सोचा कि फिल्म प्रोडक्शन कंपनी क्या किस तरह से शूट किया जाता है. Okay, so if I heard it right, you were saying that film production business में, क्योंकि मैंने वो कमेंट में पढ़ा था, film production business में क्या है. So okay, मैं आपको एक क्लासिक लिस्टेड मार्केट के हिसाब से एक एग्जांपल देता हूँ. बालाजी टेलीफिल्म, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म प्रोडक्शन हाउस इन इंडिया. रिलायंस ने जब उसमें इन्वेस्ट नहीं किया, रिलायंस ने उसमें इन्वेस्ट किया जब कंटेंट बनाना चालू किया. ओके, ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए उन्होंने कंटेंट बनाना चालू किया, तब रिलायंस ने पैसे डाले. फॉर मेनी इयर्स बालाजी ऑन बुक. What does it mean that उनकी लाइब्रेरी को एडिशनल कोई वैल्यूएशन नहीं मिल रहा था. सो फिल्म प्रोडक्शन का क्या है, फिल्म प्रोडक्शन में फंडिंग इतना जल्दी नहीं मिलता है. उसका रीजन ये होता है कि आपकी हर एक फिल्म इज अ न्यू प्रोडक्ट. ओके, सो यू डोंट कैरी फॉरवर्ड एनी ऑफ योर स्ट्रेंथ्स, यू डोंट लीवरेज एनी ऑफ योर स्ट्रेंथ्स ऑफ प्रीवियस प्रोडक्ट टू योर न्यू प्रोडक्ट. सो देयर इज नथिंग लाइक अ बिजनेस कंटिन्यूटी. पीपल विल आपको सपोर्ट ये करेंगे, नहीं आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है एंड इसकी वजह से मैं आपको नेक्स्ट मूवी आपका मतलब पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है तो आपकी नई मूवी इजीली 100 करोड़ का धंधा कर लेगी एंड ऑल दोस थिंग्स. बट फिल्म प्रोडक्शन में फिर भी क्या होता है कि एवरी टाइम योर प्रोडक्ट इज न्यू. सेकंड, इट इज नॉट कि आपने कितना पैसा बनाया, कितना आपका कलेक्शन हुआ, ये जो हम लोग सुनते रहते हैं. हर एक प्रोडक्ट का अलग अलग रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होता है. सो आपको मैं एग्जांपल दूंगा. देयर वाज अ मूवी एक टाइम पे, भेजा फ्राई. भेजा फ्राई मूवी करोड़ से कम पैसा लगा था और उस मूवी ने, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसने कुछ 25 करोड़ का रेवेन्यू किया. अब उसका आरओसी बहुत अच्छा हुआ, लेकिन सेम प्रोडक्शन हाउस ने दूसरी जब मूवीज की तो उतना फ्लॉप हुआ. तो एंड ऑफ द डे उसका अगर आप पूरा लाइब्रेरी का अगर आप दिखाओगे, ऑल मूवी का लाइब्रेरी का अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी देखोगे, तो वो 15-20% के बीच में उसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होता है. यूटीवी विच इज अनदर बिग प्रोडक्शन हाउस जो था, उसको भी जब डिज्नी ने खरीदा, ठीक है, सो ऑब्वियसली डिज्नी ने उसको तब वैल्यू दी, लेकिन एंड ऑफ द डे डिज्नी को भी उसका प्रोडक्शन लाइब्रेरी राइट ऑफ काफी हद तक करना पड़ा. तो इसलिए फिल्म प्रोडक्शन में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट इंडिया में बहुत ही कम आता है. Right. I think we have got 4 minutes left. So, if you have some concluding remarks, तो आप लोगों को बताना चाहे some golden word of advice and whatever way you want to conclude it, then we can one or two more questions. Okay. So most as I'll just go back to where I started this conversation. जो कल का क्वेश्चन था उसमें कि don't get bogged down by the current scenario of recession. There is always an opportunity in this recession. So focus on that. It's not about copying what someone else has done. Okay? मतलब उसका ही कॉपी पेस्ट अगर मैं करता हूं तो वो आइडिया नहीं है. आइडिया वो है कि या तो मैं कुछ नया प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं, या मैं उसको एफिशिएंटली या मोर इफेक्टिवली सॉल्व कर रहा हूं, या फिर मैं कोई नई कंज्यूमर डिमांड क्रिएट कर रहा हूं. वो तभी बिजनेस आइडिया है. सो फोकस ऑन दैट. इन्वेस्टर विल कम इफ यू आर गुड एट योर बिजनेस. ओके, आपका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट लाइफ में इन्वेस्टर मत रखिए स्टार्टअप में. ओके, जिस दिन आप चालू करते हो ये मत सोचिए कि मेरे इसमें कौन इन्वेस्ट करेगा. अगर आपके बिजनेस में दम होगा तो इन्वेस्टर आ जाएंगे. अलग अलग फ्लेवर के इन्वेस्टर्स होते हैं, कोई ना कोई तो आ ही जाएगा, सो लॉन्ग एज योर बिजनेस इज गुड. सो इन्वेस्टर को प्लीज सेंटर स्टेज मत रखिए अपने बिजनेस आइडियाज में. बिजनेस आइडिया में हमेशा आपका प्रॉब्लम सोल्यूशन और कस्टमर हैज टू बी द सेंटर स्टेज. अगर ये दोनों को सेंटर स्टेज रख के अगर आपने एग्जीक्यूट किया, यू विल बी सक्सेसफुल. I think one person asked the question twice about the validation in construction industry, civil industry. Data validation. So, okay, see, civil industry में क्या हो जाता है कि स्टार्टअप, इसका मतलब क्या है कि लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इनिशियल फेज पे यू कैन मैं चालू कर सकता हूँ अपने लिमिटेड कैपिटल, फैमिली फ्रेंड्स के पैसे से कुछ चालू कर सकता हूँ.
उतने कैपिटल से मैं एटलीस्ट लेके जाता हूँ। अब सिविल कंस्ट्रक्शन और ये सब में क्या है, इट इज अ बिजनेस. विल आई कॉल इट अ स्टार्टअप? Yes, it's I have started, but it's not a novel business idea. Okay, it's not a new business idea. Someone is doing और मैं करूंगा, मेरे पास कैपिटल होगा तो मैं जल्दी कर पाऊंगा, तो वहां पे उसको मैं स्टार्टअप में क्लासिफाई नहीं करूंगा. हाँ, लेकिन अगर वही इंडस्ट्री के लिए आपने कोई समझो रोबोटिक सॉल्यूशन लेके आए, या आपने स्लैब मैन्युफैक्चरिंग की कोई नई टेक्नोलॉजी लेके आए, या जो मटेरियल साइड पे है, जो मटेरियल यूज होता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, उसमें अगर आपने कोई इनोवेशन लेके आए कि लाइट मटेरियल अगर आप लेके आ सकते हैं, तो उसमें अगर आप इनोवेशन करते हो, देन आई वुड कंसीडर इट एज अ स्टार्टअप आइडिया. सो थिंक ऑन दोज लाइंस. डोंट थिंक ऑन कि मैं भी एक सिविल कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर बनूं, तो वो स्टार्टअप आइडिया नहीं है. Yeah, I think we cannot. About 1 minute left. So thank you so much, Bhushan, and sorry about the voice quality from my end today. I somehow didn't use the headset. No issue. Yeah, and a No pleasure issue. having you. Thanks, CK. And I look forward to have you back again with Startup Partner. Thanks, CK. Thanks, everyone. Thank you. Have a nice day, everyone, and we'll share the link in our social media platform after 1 hour. Thank you so much.